myself Vinay Pujari. Today I am giving you introduction lecture on bills of exchange. As per the new syllabus, due to changes in the due to the COVID-19, there is some changes in the syllabus, but this chapter is still there. So this chapter stands chapter number 7 as per the syllabus of 12th standard, and in your question, as per your question paper, new pattern of question paper, this will stand question number 3 with the chapter dissolution. So I advise you go for this chapter because this chapter is content of a journal entries, and you are very well aware, you studied very well a journal entry in 11th standard also. Today let me to first introduce what is the meaning of bills of exchange. See student, there are two types of transaction. There are two types of transaction, that is cash transaction and credit transaction. Cash transaction and credit transaction. If the seller sell the goods to buyer on cash, the relation between them gets end. But if the goods are sold on credit basis, then the seller required some written document from buyer. If he allowed the credit to the buyer for 2 months or 3 months, then he requires some written document. That document is also called that is nothing but an instrument. In which he will write all the detail. वो पूरा डिटेल लिखता है कि किस तारीख को, कौन से तारीख को बायर उसको पैसा देगा, and on what condition he will pay. That document or that instrument is nothing but bills of exchange. Once again I am explaining you कि जब कोई सेलर बायर को गुड्स सेल करता है ऑन क्रेडिट बेसिस, कैसे सेल करता है ऑन क्रेडिट बेसिस, तो उसको एक लीगल प्रूफ की रिक्वायरमेंट रहती है, जो लीगल डॉक्यूमेंट हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। से देयर आर टू पार्टीज। अब देखो ये दो पार्टी के बारे में बताता हूं। ही इज अ सेलर एंड हियर इज बायर। Clear? When the seller sell the goods to buyer on credit. Clear? If goods are sold on cash, then the transaction, then the relation get end. But when the goods are sold on credit, suppose the credit is for 45 days or 2 months, whatever it may be, then the seller requires some legal proof. From buyer. बच्चों ध्यान दो, जब अगर गुड्स किसने, सेलर ने बेचा, किसको, बायर को, कैसा बेचा, क्रेडिट बेसिस पे, तो इसको कुछ तो लीगल डॉक्यूमेंट उसको रिक्वायरमेंट होता है, तो वो लीगल रिटर्न डॉक्यूमेंट में वो अपना टर्म्स एंड कंडीशन लिखता है कि बायर जो है उसको किस हिसाब से पैसा देगा, वो सब कंडीशन वो लिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या रहेगा, देयर विल बी वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट इज स्पेसिमेन फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट विल बी फॉर 5 मार्क्स। आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 मार्क्स का बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड सेकेंड पार्ट इसमें रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का रहेगा, दैट इज 10 मार्क्स, एंड दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 3 एज पर योर न्यू पेपर पैटर्न। अब मैंने तुमको दो चीज बताया, एक कौन है, सेलर, दूसरा कौन है, बायर। सेलर ने क्या किया, गुड्स बेचा, किसको, बायर को, कैसे बेचा, ऑन क्रेडिट, और उसने एक डॉक्यूमेंट लिखा के लिया, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, लेट मी टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट। ओके, अब ये तुम लोग को ध्यान पे आ गया कि ये एक्चुअली है क्या, व्हाट इज दिस, देयर इज वन सेलर एंड बायर, गुड कैसे बेचा गया, ऑन क्रेडिट, एंड seller made one document in which the terms and the condition of payment is written. So if that document is called as bill of exchange. Now parties,
How many parties are there in bills of exchange? See, first one, parties contain. Number one, that is drawer. Who is that? Drawer. A person who draw a bill is called as drawer. वो आदमी जो बिल ड्रॉ किया है उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉर. अ ड्रॉर is a seller. Clear? Drawer is nobody else but seller. One more point you got clear. Drawer, seller have one more name, that is drawer. Why drawer? Because a person who draw a bill. बिल ड्रॉ कौन करता है? सेलर. और सेलर को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉर. अब सेकेंड पार्टी, दैट इज ड्रॉइंग. व्हाट इज दैट? ड्रॉइंग. अ पर्सन who accept the bill, accept a bill is called as ड्रॉइंग. अब माय डियर स्टूडेंट, अब ध्यान दो. क्लियर? ड्रॉअर मीन्स वो बंदा जिसने बिल ड्रॉ किया. एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ड्रॉइंग. एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? ही इज एग्रीड विद द टर्म्स एंड द कंडीशन विच इज रिटन इन द बिल. which is written in the bill. Once he had accepted means he put the sign on bill. उसने बिल पे साइन कर दिया, मतलब क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया. एक्सेप्ट का मतलब क्या है? he is agreed with the terms and the condition which is written in the bill. Correct? Who is a drawee? A person who accept a bill which is called as a drawee. A person who accept a bill is called as a drawee. Drawee is nobody else but buyer. Drawee is nobody else but buyer. Correct or no? See, a drawee is a buyer. Drawee is a buyer. Clear dears? Now ये दो पार्टी हो गए. इसके अलावा और एक पार्टी है नंबर 3, that is pay. What is that? Pay. Clear? अब पे किसको बोलेंगे हम लोग? पे बोले तो one more person is here, that is pay when the drawer mention the name of some person in bill, that instead of paying me you pay to that particular person XYZ, then XYZ is a pay. मतलब ड्रॉअर जो बिल बनाता है उसमें लिखा होता है सो एंड सो डेट को आप जो पैसा है मुझे मत देना बल्कि XYZ को देना. वट एवर द पर्सनल रिलेशन दे में हैव, XYZ को देना. तो XYZ क्या हो गया? पे. अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अ पर्सन ऑन हुज फेवर a bill is drawn is called as drawing. Is called as pay. Is called as pay. तो ये हुए कुछ मेरे 3 पार्टीज जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में. किसमें इन्वॉल्व होते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में. इस तरह से हमने क्या देखा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है जो ड्रॉ कौन करता है? ड्रॉअर इज नोबडी बट अ सेलर. और दूसरा पार्टी जो होता है जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने वाला नोबडी एल्स बट ड्रॉई इज नोबडी एल्स बट अ बायर. ड्रॉई इज नोबडी एल्स बट अ बायर. गुड्स कैसा बाय हुआ? क्रेडिट पे. कैसा बाय हुआ? क्रेडिट पे. और पे एक पार्टी है. पे कौन है? अ पर्सन ऑन हुज फेवर द बिल इज ड्रॉन. अ पर्सन ऑन हुज फेवर अ बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज पे. इज कॉल्ड एज पे. A few moments later.
Dear students, let us to continue further. Some special terms and important points. Now, I have given you introduction about the chapter, but there are the some points and there are the some special terms which you have to remember in bills of exchange. First of all, let me to discuss that what are that points. Say number one, that is draft and bill of exchange. So sometime there may be fill in the blanks. What about the draft? See, what is that? What is the meaning of draft? Before acceptance of bill, who accept the bill, dear students? Yes, drawee accept the bill. Correct. Drawee accept the bill. Accept करना बोले तो क्या? Sign करना. Before the acceptance of the bill by a drawee, a bill is called as draft. A bill is called as draft. ड्रॉई एक्सेप्ट करने से पहले, एक्सेप्ट करने मतलब क्या? उस पर साइन करना. ड्रॉई एक्सेप्ट करने से पहले बिल को क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट. और एक बार ड्रॉई ने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लिया और उस पर साइन कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. करेक्ट. सो बच्चों लोग फिर से ध्यान दो, व्हाट इज दैट? ड्राफ्ट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. फिर से बोलता हूं, बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रॉई, बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रॉई. ड्रॉ कौन करता है? ड्रॉर. एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉई. बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रॉई, एक्सेप्ट करना क्या? उस पर साइन करना. साइन करने से पहले बिल को क्या बोला जाता है? ड्राफ्ट. This question can be asked in fill in the blanks. Before the acceptance of the bill, it is called as dash. A bill is called as dash. That is draft. Clear? ये कुछ points आपको याद रखना है. Number one, that is draft and bills of. Once you put the sign on the bill draft, then it is considered as bills of exchange. Once you put a sign on bill, it is considered as a bills of exchange. So this is the first point you have to remember. Second point, that is bills receivable and bills payable. अब बच्चों लोग, very important point, that is bills receivable and bills payable. से आपने 11th में फाइनल अकाउंट किया था. Yes, all of you remember that final account. आपको याद होगा फाइनल अकाउंट में हमेशा ये दो आइटम आपको दिखते थे. एक क्या? बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल. बिल्स रिसीवेबल इज एसेट्स. आपको याद होगा आप एसेट्स में लिखते थे करंट एसेट्स. कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स. वैसे ही आपको याद होगा बिल्स पेएबल आप लिखते थे लायबिलिटी में. कौन सा लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी. अब इसमें फर्क क्या है? रिसीवेबल बोला तो क्या? मिलना बाकी है. अब किसको मिलना बाकी है बच्चों लोग? ऑब्वियसली पैसा किसको मिलना बाकी है? ड्रॉअर को. करेक्ट. तो याद रखना, ड्रॉअर के बुक में हमेशा क्या रहेगा? बिल्स रिसीवेबल. क्लियर? क्यों? क्योंकि उसको पैसा मिलना बाकी है. और ड्रॉई हमेशा बिल भरना है तो उसके बुक में रहेगा बिल्स पेएबल. ये कभी चेंज नहीं होगा. आप कभी ऐसा मत लिखना, ड्रॉअर के बुक में कभी ऐसा एंट्री मत दिखाना कि बिल्स पेएबल. कभी नहीं होगा. और ड्रॉई के बुक में कभी बिल्स रिसीवेबल नहीं होगा. ड्रॉअर के बुक में हमेशा बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉई के बुक में हमेशा बिल्स पेएबल. इज दैट क्लियर? देखो फिर से सुनो, आपने 11th में देखा था एसेट साइड में क्या आता है? बिल्स रिसीवेबल. लायबिलिटी में साइड में क्या आता है? बिल्स पेएबल. यहां पे आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, बिल्स रिसीवेबल बोले तो मिलना बाकी है. ऑब्वियसली किसको मिलना बाकी है? ड्रॉअर को. क्यों? क्योंकि ड्रॉअर ने गुड्स बेचा है. कैसा बेचा है? क्रेडिट में बेचा है, तो उसको मिलना बाकी है. और ड्रॉइंग के बुक में बिल्स पेएबल, क्योंकि वो पे करना बाकी है, इसलिए ड्रॉइंग के बुक में हमेशा बिल्स पेएबल, वो कभी चेंज होगा नहीं. क्लियर माय डियर? सी, वेरी गुड स्टूडेंट्स. नंबर 3, दैट इज honor and dishonor of bill. Honor and dishonor of bill. See this? These are the some important points you have to remember while solving this chapter. So, what is that third point? That is honor and dishonor of bill. When the drawee make a payment on due date.
अब ड्यू डेट बोले तो क्या, डेट ऑन विच ड्रॉई मेक पेमेंट, ड्रॉई हैव टू मेक अ पेमेंट, वो दिन जिस दिन बिल में लिखा है कि ये तारीख को ड्रॉई पे करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू डेट। और ड्यू डेट के दिन अगर ड्रॉई ने पैसा पे किया तो उसको क्या बोलते हैं, हॉनर ऑफ बिल, हॉनर ऑफ बिल। करेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा। अपोजिट क्या होगा, अगर उसने पे नहीं किया, इफ ही फेल टू मेक द पेमेंट देन इट इज कॉल्ड एज डिसऑनर ऑफ बिल। एनी डाउट माय डियर्स? अगेन, when ड्रॉई मेक द पेमेंट ऑन ड्यू डेट, अगर उसने पेमेंट कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, हॉनर ऑफ बिल। इफ यू फेल टू मेक द पेमेंट ऑन ड्यू डेट देन इट इज कॉल्ड एज डिसऑनर ऑफ बिल। क्लियर? Next point, that is point number 4, that is the last point which I want to say you, that is due date. What is that? Due date. Yes, what is the meaning of due date? आपको क्लियर है? ड्यू डेट मीन्स वो डेट जिस दिन ड्रॉई पेमेंट करेगा। A date on which drawee have to make the payment is called as due date. उसको क्या बोलते हैं? Due date. Due date is always calculated with a 3 grace days. कितना days? 3 grace days. करेक्ट और नो? 3 दिन का ग्रेस मिलता है। उसके बाद जो डेट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? ड्यू डेट। करेक्ट। सो व्हाट आर द पॉइंट्स आई डिस्कस हियर? फर्स्ट वन, ड्राफ्ट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। सेकंड, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। थर्ड, हॉनर एंड डिसऑनर ऑफ बिल। Fourth, due date. Correct or not? These are the certain point which we have to remember while solving the sum. अच्छा, I have told you that they are always add 3 days as a grace days. अच्छा, ग्रेस डेज से पहले जो डेट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल ड्यू डेट। क्या बोलते हैं? नॉमिनल ड्यू डेट। और ऐड होने के बाद 3 डेज ऐड होने के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज अ ड्यू डेट। उसको लीगल ड्यू डेट भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ड्यू डेट। करेक्ट और नो? सो दीज आर द 4 पॉइंट्स यू हैव टू remember while solving this chapter. Okay my dears? Correct. Now let me to say some important thing about this chapter. अब आपको ये क्लियर है, बिल ड्रॉ किसने किया? ड्रॉर ने। बिल एक्सेप्ट किसने किया? ड्रॉइंग ने। बिल में कंडीशन होगा, उसने साइन कर दिया। साइन करके बिल वापस किसके पास रहेगा? ड्रॉर के पास। कब तक? जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कब मिलेगा उसको? ऑन ड्यू डेट। क्लियर माय डियर्स? ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट को उसको पैसा मिलेगा। सो दिस आर द सर्टेन पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट मी टू गो फॉर द फर्दर। इसके आगे का भी मैं तुमको अभी डिस्कस करता हूं। ये 4 पॉइंट आपको अपने नोट्स में लिखना है। अब मैंने जो बोला है वो भी आपको याद रखना है, किसको क्या क्या बोलते हैं। ये पूरे चैप्टर में आपको ये काम आएगा। क्लियर? ऑनर बोले तो पैसा दे देना, डिसऑनर बोले तो पैसा देने से फेल होना, उसको क्या बोलेंगे? डिसऑनर ऑफ बिल। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना है और लिख लेना है। अब मैं तुमको आगे के पॉइंट्स बताता हूं। क्लियर? सबसे पहले अब मैं एक आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक स्पेसिमेन बताऊंगा। क्लियर? यस, लेट अस टू सी व्हाट इज, हाउ इज द स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। See, specimen for बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने तुमको बताया था कि आपको 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। ये 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? एक आपको स्पेसिमेन बनाना है। सो आपको मैं अभी एक स्पेसिमेन बनाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर सम्स, 1-2 सम्स करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसीड करेंगे, प्रैक्टिकल सम्स में जाएंगे। से बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा बनता है? सपोज दिस इज योर बिल। क्लियर?
इज दैट सी। एकदम सेंटर में लिखना कैपिटल में, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, bill of exchange, correct? On the right side you have to write name of drawer, name of drawer। आप बोलोगे हमको कैसा मालूम पड़ेगा? क्वेश्चन में दिएला रहेगा, आपको पूरा डिटेल दिएला रहेगा, नेम ऑफ ड्रॉअर। देन यू हैव टू राइट एड्रेस, address will be presented in question, okay? Date of bill, date of bill, correct? ये आपको ऐसा प्रेजेंट करना राइट साइड। exact opposite to that you prepare one square, either square or rectangle, इट मेक्स नो डिफरेंस। या तो स्क्वायर में करो या तो रेक्टेंगल में करो, दैट इज स्टैंड। क्लियर? यहां पे आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है जिसमें आपको रुपीस लिखना है, रुपीस। क्लियर है ना? दिस इज इन वर्ड, इन वर्ड्स। से हाउ द, देखो आपको पूरा बॉडी सेम टू सेम बनाना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो उसमें आपका मार्क्स कटेगा। से डैश आफ्टर द डेट, डैश आफ्टर द डेट, करेक्ट? इसमें क्या आएगा? पीरियड। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 45 डेज, 2 मंथ्स या फिर 60 डेज या 40 डेज, जो भी डेज दिया है वो यहाँ पे लिखने का, करेक्ट? लेकिन लिखते टाइम याद रखना आप वर्ड्स में लिखोगे। 40 डेज यू शुड बी प्रेजेंट इन वर्ड्स, ओके, नॉट इन फिगर। सॉरी, दिस इज फिगर एक्चुअली। आपको यहां पे वर्ड्स में लिखना है पीरियड, ओके। आफ्टर द डेट, पे टू डैश, पे टू डैश, हियर नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पेइंग। मैंने तुम लोग को पहले ही बताया, अगर पेइंग नहीं रहेगा तो ड्रॉअर हिमसेल्फ इज अ पे, अगर पे नहीं रहेगा तो ड्रॉअर हिमसेल्फ इज अ पे। नेम एंड एड्रेस ऑफ पे, इफ सपोज देयर इज अ नो पे देन पे टू मी, पे टू मी। क्लियर? और इज माय ऑर्डर, इज और माय ऑर्डर। अगर पे है तो इज और हर जो भी है, करेक्ट और नो? अगर पे नहीं है तो माय ऑर्डर, करेक्ट? द सम ऑफ रुपीज, द सम ऑफ रुपीज डैश, द सम ऑफ रुपीज डैश ओनली, करेक्ट? अमाउंट, अमाउंट इन वर्ड्स, amount in words for the value received। my dear student, ये आपको जहां पे मैंने बॉक्स किया है, डैश किया है, खाली उधर ही चेंजेस आए, बाकी का सेम टू सेम आपको लिखना है, नो चेंजेस एट ऑल। क्लियर? ओके। देन हियर टू नेम and address, name and address of drawing। क्वेश्चन इज दैट, हमको कैसा मालूम पड़ेगा? क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। क्लियर? ओके। नाउ
name and address of drawee. Here there will be one accepted sign, accepted by name of drawee. आपको फिर से ड्रॉई का नेम लिखना है. क्या लिखना है? एक्सेप्टेड बाय नेम. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. अब आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आएगा, हमको कैसा मालूम पड़ेगा? फिर से वही आंसर रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा. क्वेश्चन में दिया रहेगा. हियर देयर विल बी ओनली वन पॉइंट, दैट इज नेम ऑफ ड्रॉर. नेम ऑफ ड्रॉर. ये इतना काम करने का आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे. वेरी इजी, 5 मार्क्स इन योर पॉकेट. वेरी इजी, कुछ करना नहीं है. करेक्ट और नो? अब इसमें करेक्ट, इसमें वो लोग आपको मार्क्स बांटेंगे. क्लियर? इसका 1 मार्क, इज इट? हियर विल बी हाफ मार्क्स. करेक्ट? हियर विल बी 1.5 मार्क फॉर बॉडी एंड रिमेनिंग ऑल हाफ, हाफ एंड हाफ. अगर ये सब राइट है आपका तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे. क्लियर? बॉडी में कोई चेंजेस मत करना. थोड़ा बहुत इसमें अगर समझो, ये एक ऑप्शन है आपके पास, ये जो आप फिगर है ये यहां भी लिख सकते हो, बट डोंट राइट. दिस इज अ राइट प्रेजेंटेशन. ओके. A few moments later. Okay, dear student, now let us to go for the practical sums. Up to now I have given the introduction and I have given the theory about this question, this chapter. Now I am giving you the specimen. I am giving you specimen. Here there will be the question. You can see the question and I will solve the solution of that. So this question, this practical, specimen will be asked for 5 marks. So how to present that? I have given the introduction. I have given the introduction of the specimen in last lecture, where I have mentioned you what is the specimen actually. Now I will give the sums. So exactly here you will see the sums and I will solve that sums. Okay? See how to prepare it. कैसा बनाना है ये देखो, मैं आपको बता रहा हूं. ये साथ ही साथ आप मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ते जाना. मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं और आपको किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है कि आपको 5 मार्क्स मिले. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा डिटेल बताया और ये भी कैलकुलेशन बताया कि कौन से चीज पे कितना मार्क्स है. 5 मार्क्स का सम्स रहेगा. सी हाउ टू प्रेजेंट इट. सी दिस क्वेश्चन दैट विजय भट्ट. सी एकदम सेंटर में आपको लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज. ये लिखने मत बोलना एग्जाम में. करेक्ट? बिल ऑफ एक्सचेंज. क्लियर? सी दैट इज ड्रॉर इज, आपको मैंने क्वेश्चन में दिया है. ड्रॉर कौन है? विजय भट्ट, मेन रोड, नागपुर. से विजय भट्ट, मेन रोड, नागपुर. ये एड्रेस है किसका? ड्रॉर का. आपके क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में ये बात होगा आपके दिमाग में कि आपको ड्रॉर का कैसा नाम मालूम पड़ा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. विजय भट्ट, मेन रोड, नागपुर. अच्छा, डेट ऑफ बिल. यू कैन सी द डेट ऑफ बिल दैट इज 7th March 1996. सो कैसा प्रेजेंट करना है? 7th March 1996. See dear student, you have to present in this way only. आप इसको ऐसे मत बताना 7/3/1996. नो, आपका मार्क्स कट सकता है. सो अगर पेपर में, क्वेश्चन पेपर में भी अगर आपको ऐसा दिया है तो भी आपको इसी तरह प्रेजेंट करना है. क्लियर? एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ दैट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था और आपको बना के बताया था कि यहां पे आप स्टैंप लिखोगे. स्टैंप या तो स्क्वायर में रहेगा या तो रेक्टेंगल चलेगा. बराबर है? दूसरा कुछ मत बताना. ओके? हियर देयर विल बी अमाउंट इन फिगर. यस माय डियर. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल? हियर इट इज 6,950 rupees. 6,950 only. Clear? What is the period of bill? See, what is the period? That is 80 days.
अब मैं देखो कैसा लिखता हूं, 80 डेज, आपको ऐसे ही लिखना है, डोंट राइट इन फिगर, ओके। 80 डेज आफ्टर द डेट पे टू। क्या ये क्वेश्चन में पे है क्या? यस, पे है। तो इस क्वेश्चन को आप बोलोगे विथ पे। क्या बोलोगे? विथ पे। यहां पे है अनिल जादव। हु इज दैट? अनिल जादव, अनिल जादव पुणे, है ना। क्वेश्चन में पे है अनिल जादव। कौन है? अनिल जादव। और इज ऑर्डर। अगर पे नहीं होता तो यहां पे आप लिखते थे मी। क्या लिखते थे? मी। और इज ऑर्डर के बदले में आप लिखते थे माय ऑर्डर। द सम ऑफ रुपीज आपको ये अमाउंट वर्ड्स में लिखना है, दैट इज 6,950 only, 950 only for the value received। मैंने क्या बोला? आप खाली जो प्रेजेंट है, जो आपको चेंज कर सकते हो चेंज करोगे, बाकी अंदर जो बॉडी है उसको सेम टू सेम रखना है। और इज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, नो चेंजेस विल बी देयर, इट विल बी एज इट इज। क्लियर? ये क्वेश्चन तुम लोग ने क्या देखा? इट इज विथ पे। व्हाट इज दैट? विथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बताऊंगा विदाउट पे। करेक्ट और ना? सी यहां पे टू, करेक्ट। हु इज द ड्रॉइंग? The drawing is Ashok Kulkarni, MG Road, Nagpur. Ashok Kulkarni, MG Road, Nagpur. Clear बच्चा लोग? Very good. Then you have to write here accepted. ये आप accepted को ऐसा straight line भी कर सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। जो बनाना बनाओ, ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसा मैंने किया ऐसा आप क्रॉस भी लिख सकते हो। एक्सेप्टेड बाय, है ना। अगेन राइट द नेम ऑफ ड्रॉइंग। एक्चुअली यहाँ पे साइन आता है, यू डोंट डू द एनी साइन। करेक्ट और नो? आपको क्या लिखना है? अशोक कुलकर्णी, वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, अशोक कुलकर्णी। करेक्ट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप सोच रहे होगे कल ये 12th में आपके साथ रहेगा? नो। आप अगर सीए कर रहे हो तो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहेगा, अगर आप सीएमए कर रहे हो उधर भी आपको काम आएगा, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो या फिर टीवाई करते हो वहां पे भी आगे जाके ये सब चीज आपको रहेगा ही, या तो इससे रिलेटेड कुछ रहेगा। करेक्ट और नो? सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। करेक्ट और नो? व्हाट इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस? अभी ये एक्सेप्टेड किसने किया? मैंने किसका नाम लिखा? ड्रॉइंग का। अब जरा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देखते हैं हम लोग। दैट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 10th of March, 10th March 1996। अगेन माय डियर स्टूडेंट, आपको फिर से बोलता हूं, आपको ऐसा नहीं लिखना है, इस प्रेजेंटेशन में नहीं लेना है 10/3/1996। नो, you have to write। अगर क्वेश्चन में भी ऐसा दिया है then also you have to convert in this way। Clear? And here that is SD means signature of drawer। आपको कोई साइन बिल नहीं करना है, आप as it is नाम लिखिए विजय भट्ट। क्लियर? तो ये हुआ आपका 5 मार्क्स का सम्स, वेरी इजी। करेक्ट और वेरी इजी। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको 5 मार्क्स एकदम वेरी सिंपल वे में मिलेगा। क्लियर? अब ये क्वेश्चन तुम लोग ने क्या देखा माय डियर? इसमें आपके पास कौन था? पेई था। इसमें आपके पास पेई था। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसमें पेई प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर? ओके, वेरी नाइस। ओके ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट अस टू गो फॉर नेक्स्ट सम्स। अभी ये सम्स मैंने तुम लोगों को क्या कराया था? विथ पे। In the next sums, I will go for without pay.
करेक्ट. व्हेन देयर इज अ विदाउट पे देन सिंपली देयर इज वेरी लिटिल चेंजेस. तो वो भी मैं तुमको बता देता हूं. सो यू विल बी क्लियर 100%. 5 मार्क्स का सम्स आएगा. और अगर आपको ये सम्स अटेम्प्ट करना है तो बहुत इजी है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो. सी नेक्स्ट सम्स मैं आपको बताता हूं जिसमें पे नहीं है. करेक्ट और नो. सी अब क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट रहेगा, है ना. आपके सामने क्वेश्चन रहे, देख लीजिए. फर्स्ट वन, लेट अस टू सी. उसी तरह आपको प्रेजेंट करना है. पहला आप मिडल में लिखोगे बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज. क्लियर. ये क्वेश्चन मैं ऐसा बताऊंगा दैट इज विदाउट पे. नेम ऑफ ड्रॉर. व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रॉर हियर? दैट इज जयदीप पाटिल. जयदीप पाटिल name. Write the address. Address is 104 Monda Road. Correct. Vaijanad. So this is the address. What is the date of bill? Date of bill is 4th October. 4th October 2004. So my dear student, फिर से आपको ऐसे प्रेजेंट करना है ना, जिस तरह से मैंने आपको बोला. Exact opposite that you will make one rectangle or square, that is stamp. Okay, no changes. Same everything. Here you have to write the amount in figure. Okay, what is your amount of the bill here? 4,500. So 4,500 only. Clear? How many days? What is the period of the bill? The period of the bill is 3 months. Then you have to write in words, that is 3 months. After the date, pay to, there is no pay. Pay to me, or my order. Clear? The sum of rupees 4,500 only. 500 only for the value received. Clear? 2. Who is the drawee here? Rahul Shinde, MG Road. Rahul Shinde, MG Road, Pune 14. Isn't accepted by Rahul Shinde. What is the date of acceptance here, my dear? That is 7th October. 7th October 2004. Correct? Here as it is, that is signature of drawer Jaydeep Patil. Okay. Now my dear बच्चे लोग, what you have seen here, nothing is a changes, only that here instead of the name of the payee you have to write me, because as I told you in introduction lecture that जब payee absent रहेगा तो drawer himself is a payee. तो यहाँ पे payee absent है तो drawer ने इधर क्या लिखा? me लिखा. Correct? The role of the payee will be played by drawer himself. And here हमने उसमें लास्ट